Good morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, before starting today's work, I want to share a thought with you. Listen carefully. Difficult roads always lead to a beautiful destination. बेटा जो रास्ते कठिन होते हैं मीन्स आज हमें काम करना मुश्किल लग रहा है तो ये हमें लेकर के जाएगा एक अच्छी जगह पर। जो कठिन रास्ते हैं वो सुंदर डेस्टिनेशन पर हमें लेकर के जाते हैं। हमारी जो पहुंचने की जगह है, जो हमारा एम है वो बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है यदि हम परेशानियों को पार करते हुए जाते हैं तो। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। Today we will discuss chapter 8 from our book First Flight. Name of the chapter is Misbil the Otter. मिसबिल यहाँ पर राइटर ने नाम रखा हुआ है किसका? एक ओटर का। ओटर क्या होता है? ए मैमल with short four legs and brown fur which eats fishes. एक भूरे फर वाला, छोटे छोटे पैर वाला, एक लंबी पूंछ वाला मैमल है जो कि फिश खाता है, पानी में पाया जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं उदबिलाव। Written by Gavin Maxwell. Gavin Maxwell was born on 15 July 1914. He died on 7 September 1969. Let's discuss the characters of this chapter. Gavin Maxwell, he is the writer, he is the narrator of this chapter. He was a Scottish means क्या? Belongs to Scotland. Naturalist and author. Best known for his non-fiction writing and his work with otters. Non-fiction writing, fiction क्या था? Imaginary. Means जो उसके वर्क्स हैं otters के साथ में non-fiction है, means कुछ बनावटी नहीं है, reality है. He was a very caring and एक पोलाइट पर्सन, बहुत ही केयर करने वाला, बहुत ही पोलाइट विनम्र इंसान है। He took complete care of his pet. Next character is मिसबिल द ओटर। मिसबिल उसने नाम रखा है, ओटर क्या है? उदबिला हुआ है, एक वाटर एनिमल है जो कि फिशेस खाता है, जिसकी ब्राउन फर होती है, लॉन्ग टेल होती है, 4 छोटे छोटे लेग्स होते हैं। He is the pet of Maxwell. क्या है? पेट है, पालतू है किसका? मैक्सवेल का। He is a very friendly, intelligent and fun loving. वह क्या है? बहुत ही फ्रेंडली है, इंटेलिजेंट है और फन लविंग है, क्रिएचर प्राणी है। He plays with water and other objects like a rubber ball. वाटर के साथ खेलता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ खेलता है जैसे कि रबर बॉल है। Students, let's take an introduction of the chapter. In this chapter, the writer Gavin Maxwell describes his experience when he decided to keep an otter as a pet. Gavin Maxwell's dog died. Dog's name was Johnny and dog died. He became very sad and he decided not to keep a dog again as a pet. Now he decided to keep an otter as a pet and he discussed this with his friend when he was in Iraq. He was living at Kempsfarna and Kempsfarna is surrounded by water, which was a suitable place to keep pet of an otter. Now the author got an otter through his friend and he make his pet. He described here which kind of problems he faced to take the otter, to transport the otter to England. And after reaching England, when he was enjoying with his otter, he find the Londoner did not know what kind of animal it was. They make different kind of guesses about that otter. Students, let's discuss the chapter line by line. Misbil the Otter by Gavin Maxwell.
Before you read, Gavin Maxwell lives in a cotton in Kempsfarna. Gavin Maxwell एक कॉटेज में, एक कुटिया में रहते थे केम्सफर्ना में, इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड, जो कि वेस्ट हाईलैंड्स में स्कॉटलैंड में थी. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad. जब उसका डॉग जॉनी गुजर गया था तो मैक्सवेल बहुत उदास था. टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन, कि यह सोच करके कि दोबारा से एक डॉग रखा जाए. बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लॉनली, परंतु एक पालतू के बगैर उसका जीवन अकेला था. रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ऑन वर्ड्स, कि मैक्सवेल के खुद के शब्दों में ही पढ़ें उसके बाद क्या हुआ. अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक. जो 1956 ईयर था उसके न्यू ईयर के शुरुआत में ही मैंने यात्रा की दक्षिणी इराक की. बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, क्रॉस्ड माई माइंड में केम इन टू माई माइंड, कि उस समय तक ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग, कि मुझे रखना चाहिए एक ओटर एक डॉग की बजाय पालतू के रूप में. एंड दैट केम्सफर्ना रिंग बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो, रिंग ए स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या, ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. और फिर केम्सफर्ना जो कि रिंग्ड बाय वाटर, रिंग मीन्स क्या, सराउंडेड, घिरा हुआ था पानी से बिल्कुल नज़दीक से, मीन्स जो केम्सफर्ना नाम की जगह उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है बड़ी क्लोज में. थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, कि इसके दरवाजे से पत्थर फेंकने की दूरी तक पानी से घिरा हुआ है, मीन्स इसके चारों तरफ बहुत नज़दीक पानी था. वुड बी एन इमिनेंटली स्टेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. इमिनेंटली मीन्स क्या, क्लियरली, स्पष्ट ये था कि यह एक बहुत ही स्टेबल परफेक्ट प्लेस था, स्पॉट था इस एक्सपेरिमेंट में के लिए. दिस एक्सपेरिमेंट रेफर्स टू कीपिंग एन ओटर एज ए पेट. दिस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि एक पालतू के रूप में ओटर को रखना, उद बिलाव को पालतू बनाना. ये एक्सपेरिमेंट वो करना चाहता है और कहता है कि जो केम्सफर्ना पानी से घिरा हुआ है, इसके आसपास पानी पानी है, तो यह सबसे उचित जगह थी इस एक्सपेरिमेंट के लिए. When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने कैजुअली मीन्स क्या, नॉर्मली, साधारणतः ये बात मेंशन की, डिस्कस की एक दोस्त के साथ, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. उसने बड़ी साधारणतः नॉर्मली उत्तर दिया कि मैं एक अच्छा ओटर प्राप्त कर सकता था. कहाँ से, टिग्रिस मार्सिस से. टिग्रिस एक रिवर है, मार्सिस मीन्स क्या, वेटलैंड. जो टिग्रिस रिवर की वेटलैंड थी, टिग्रिस के आसपास का जो एरिया था जो कि दलदल था, वो बहुत ही अच्छी जगह थी जहाँ से एक ओटर प्राप्त किया जा सकता था. फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोस, क्योंकि वहाँ पर वो इतने कॉमन थे, इतने अधिक बहुतायत में पाए जाते थे जैसे कि मॉस्किटोज, मच्छर हों. देयर दे रेफर्स टू ओटर्स एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स. और जो अरबी लोग हैं उनके द्वारा वो, टेम्ड मीन्स क्या, डोमेस्टिकेटेड, जो अरबी लोग हैं आमतौर पर उनके द्वारा वो पालतू बनाए जाते थे. वी वर गोइंग टू बसरा to the consulate general to collect the answer or mail from Europe. हम we were going, we किसको रेफर करता है, जो राइटर है वो और उसका फ्रेंड, वो दोनों हैं, वो बसरा गए. बसरा में जो कॉन्सुलेट जनरल है, कॉन्सुलेट जनरल में इसका राजदूतावास, वहाँ पर टू कलेक्ट एन आंसर, की जो उत्तर आना था मेल से, पत्थर से, उसको कलेक्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जो यूरोप से आने वाला था. एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट. और जब कॉन्सुलेट जनरल पहुँचे तो वहाँ पर हमें पता चला कि मेरे दोस्त की मेल आ गई थी, दोस्त का लेटर आ गया था, परंतु मेरा लेटर नहीं आया था. आई केबल्ड टू इंग्लैंड. केबल्ड मीन्स क्या है, सेंट ए मैसेज बाय टेलीग्राफ. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मैसेज भेजा, टेलीग्राफ, तार के जरिए एक मैसेज भेजा गया. कहाँ पर, इंग्लैंड में. किसने भेजा, राइटर ने, गेविन मैक्सवेल ने.
एंड व्हेन 3 days लेटर, और जब 3 दिन बाद नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स जो तार भेजा उसका कोई आंसर नहीं मिला, आई ट्राइड इट टू टेलीफोन, तो मैंने कोशिश की टेलीफोन करने की। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, जो टेलीफोन कॉल थी उसको बुक किया जाता था उस टाइम 24 घंटे पहले ही। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, जो पहले दिन जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, मीन्स काम नहीं कर रही थी, टेलीफोन लाइन काम नहीं कर रही थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, दूसरे दिन जो एक्सचेंज थी वो एक धार्मिक छुट्टी की वजह से बंद थी। ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन कोई और खराबी आ गई थी। माई फ्रेंड लेफ्ट, इस तरह से मेरा दोस्त वहाँ से चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने अरेंज किया कि मैं उससे मिलूँगा एक वीक के बाद, एक वीक के समय में। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, 5 दिन बाद मेरी मेल भी आ गई। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, और मैं इस मेल को लेकर के आया मेरे बेडरूम में इसको पढ़ने के लिए। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर स्क्वेटिंग मीन्स क्या, सिटिंग ऑन हंचेस, बैठे हुए थे उकड़ू होकर के ऑन द फ्लोर फर्श पर, वर 2 अरब्स, कौन बैठे थे, 2 अरबी लोग बैठे थे, अरब निवासी 2 लोग वहाँ पर बैठे थे। बिसाइड देम ले सेक दैट स्क्रीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनके अलावा उनके साइड में एक सैक थी, सैक मीन्स क्या, एक बिग बैग, एक बड़ा सा बैग था, एक बोरा रखा हुआ था, जो कि स्क्रीम्ड मीन्स क्या है, ट्विस्टेड अबाउट, हिल डुल रहा था समय समय पर। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मुझे एक नोट सौंपा, दे दिया, जो कि मेरे दोस्त की तरफ से था, जिस पर लिखा हुआ था हेयर इज योर ऑटर, कि ये तुम्हारा ओटर है। With the opening of that sack began a phase of my life. उस सैक को, उस बड़े बैग को खोलने के साथ मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। That has not yet ended, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। And may, for all I know, और हो सकता है, संभावना है कि जितना मैं जानता हूँ, not end before I do, कि खत्म नहीं होगा जब तक कि मैं नहीं करूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ। It is in effect the thraldom to otters, और ये उस प्रभाव में था कि जो thraldom to otters है, thraldom मीन्स क्या, ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का, being under the control of, कि वो नियंत्रण में रखते हैं। An otter fixation मीन्स क्या है, a very strong attachment और feeling, बहुत अधिक मजबूत उनके अटैचमेंट हो जाती है, ओटर्स की लगाव हो जाता है। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, कि जो मैंने पाया कि ज़्यादातर लोग इस बात को शेयर करते हैं, बताते हैं कि ओटर्स हैं, उनका लगाव बहुत अधिक हो जाता है, वो बहुत अधिक नियंत्रित व्यवस्थित रहते हैं। हु हैव एवर ऑन वन, जिस भी किसी ने कभी कोई ओटर पाला था, उन लोगों ने यही विचार प्रस्तुत किए। द क्रिएचर दैट emerged फ्रॉम दिस सैक, emerged मीन्स क्या, केम आउट, जो प्राणी, क्रिएचर मीन्स एनिमल, जो प्राणी इस बैग से बाहर आया, इस बड़े बैग से बाहर निकला। ऑन टू द स्पेसियस टाइल फ्लोर, स्पेसियस मीन्स क्या, बिग टाइल, बड़े से, ओपन एंड वाइड कह सकते हैं, जो खुला बड़ा टाइल वाला फर्श था, उसके ऊपर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम, जो राजदूतावास का बेडरूम था, उसके फर्श के ऊपर, रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, रिजेंबल्ड मीन्स क्या, लुक्ड लाइक, बिल्कुल दिखता था उसके समान, मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी, कि किसके जैसा, ज़्यादातर, जो कि बहुत ही छोटा, मध्यकालीन, मेडिवली कंसीव्ड मीन्स क्या है, मध्यकालीन। एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडल एजेस, कि पुराने ज़माने की जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, सोचे तो वो क्या था, ड्रैगन था, एक ड्रैगन था, एक अजगर के समान था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, कि सर से लेकर के पूंछ की आखिरी छोर तक, फ्रॉम द हेड
to the tip of the tail. सर से लेकर के पूंछ के आखिरी छोर तक he was coated. Coated means क्या? Covered. With symmetrical. Symmetrical means क्या? In a symmetry. एक सार बराबर. Pointed scales. Pointed means क्या? Sharp. तीखे. तीखे scales थे उसके ऊपर. Of mud armor. Mud armor. Mud armor means क्या? Mud shielded. कीचड़ के जो मड थी उसके सूखे हुए हार्ड जो स्केल्स थे वो बने हुए थे एक सार रूप से. बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट फर. और उसके टिप्स के बीच में दिखाई दे रहा था बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम वेलवेट के फर के जैसा. दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल्ड. क्या दिखाई दे रहा था? कि चॉकलेट भूरे रंग का मोल था. मोल क्या था? छछूंदर. एन एनिमल. छछूंदर के जैसे चॉकलेट ब्राउन कलर का एक प्राणी की स्किन दिखाई दे रही थी जो कि कीचड़ की शील्ड के बीच में थी, कवर के बीच में कहीं कहीं पर दिख रही थी. He shook himself and I half expected a cloud of dust. उसने अपने आप को हिलाया, मूव किया और मैंने आधी उम्मीद की थी कि इतनी धूल उठेगी उससे कहीं ज़्यादा धूल के बादल उड़े. But in fact it was not for another month. परंतु वास्तव में ये अगले महीने के लिए ऐसा नहीं था. That I managed to remove the last of the mud. कि मैंने मैनेज कर लिया था, वो रिमूव कर दी थी, हटा दी थी बिल्कुल आखिरी जो मड थी, मिट्टी थी, कीचड़ था उसके बॉडी के ऊपर. वो कितना टाइम लगा? 1 month. एंड सी द ओटर एज इट वाज. और ओटर को देखता हूँ जैसा ये दिखाई दे रहा था, जैसे ये होते थे. इन इज ट्रू कलर्स. उसके वास्तविक रंगों में. Mijbil, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science. Mijbil, जैसे कि मैंने उसका नाम रखा था, जिस नाम से मैं उसको पुकारता था, वो वास्तव में एक रेस थी, एक प्रजाति थी, स्पेसीज थी जो कि प्रीवियसली अननोन थी, पहले उसकी पहचान नहीं की गई थी. किसमें? टू साइंस, विज्ञान के लिए. एंड वॉज एट लेंथ मीन्स क्या? एट लास्ट. क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल परसिपिसिलेट मैक्सवेली. और जिसका नामकरण किया गया, क्रिश्चियन मीन्स के नेम्ड, नाम दिया गया जो जूलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, लुट्रोगेल, परसिपिलेट, मैक्सवेली, उनके द्वारा. और मैक्सवेल्स ओटर, या उसको कहा गया मैक्सवेल्स ओटर. फॉर द फर्स्ट 24 hours मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली. हॉस्टाइल मीन्स क्या है? अनफ्रेंडली. कि पहले 24 घंटों में मिजबिल ना तो फ्रेंडली था, ना ही तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहा था, ना ही अमैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहा था. ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट. अलूफ एंड इनडिफरेंट मीन्स क्या? कीपिंग ए डिस्टेंस. कि वह दूरी बना करके रख रहा था, एक सही सीक्वेंस में दूर हट के रह रहा था. ना ही तो ज़्यादा पास आ रहा था, ना ही ज़्यादा कोई विरोध कर रहा था, वैरभाव दिखा रहा था, परंतु एक डिस्टेंस बनाया हुआ था. चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल. और उसने चुना, उसने पसंद किया कि वह मेरे बेड से फर्श के ऊपर जितनी दूर जाकर के सो सकता था उतनी दूर सोया. द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल हार्स. और दूसरी रात मिजबिल मेरे बेड पर आ गया, मेरे बिस्तर पर आ गया थोड़ी देर बाद ही. एंड रिमेन्ड एस्लीप. और सोया रहा. इन द क्रूक ऑफ माई नीज. क्रूक मीन्स क्या? बेंड. जो मेरे घुटनों का मोड़ था उसके ऊपर. अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग. जब तक कि सुबह नौकर चाय नहीं लेकर के आया. एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी. एपैथी मीन्स क्या? एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट. कि जो नीरसता थी उसकी, जो चीज़ों में वह इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, वो भी दिन के दौरान वो खत्म होता गया. एंड टेक ए कीन, मच टू कीन. और उसने अधिक इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. अधिक और अधिक इंटरेस्ट अपने आसपास में की चीज़ों में लेना स्टार्ट किया. आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम. लीड मीन्स क्या? स्ट्रिंग. नेतृत्व करते हुए रस्सी के सहारे मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई और उसे लेकर के गया पकड़ करके रस्सी के सहारे बाथरूम में. वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर. जहाँ पर वह लगभग आधे घंटे के लिए वेंट वाइल्ड मीन्स क्या? बेकाबू हो गया, पागलपन आ गया उसके, जॉय करते हुए, इंजॉय करते हुए, पानी में खुश होते हुए.
प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट। प्लंजिंग मीन्स क्या? डाइविंग, डुबकी लगाते हुए, इसमें रोलिंग करते हुए, लुढ़कते हुए, पानी के अंदर अंदर डुबकी लगा रहा है, लुढ़क रहा है। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ बाथटब, और वह दौड़ लगाते हुए जितनी लंबाई थी बाथटब की, उसमें इधर से उधर दौड़ लगाता है, अंडर वाटर, पानी के नीचे ही। एंड मेकिंग इन अ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, और जैसे कि एक हिप्पोपोटामस, एक दरियाई घोड़ा छपाक छपाक की आवाजें करता है, वैसे वो भी खूब आवाजें करता है। दिस आई वाज टू लर्न इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर्स। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या? फीचर्स। और ये जो मैंने सीखा था कि एक फीचर है, ये गुण है, विशेषता है ओटर्स की। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, कि प्रत्येक पानी की बूंद, कहा जा सकता है कि एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड, कि फैला दी जाती है, बिखेर दी जाती है, ओवर द प्लेस, उस जगह पर जहाँ पर भी पानी होता है वो पानी को बिखेर देता है, गिरा देता है। ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, एक बाउल में यदि पानी रखा है उसको या तो एक बार में ही ओवरटर्न कर देता है, पलट देता है, और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, और इसको यदि पलटाने गया जाए, बी सेट इन, तो वह उसके अंदर बैठ जाता है, एंड स्प्लोश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, और उसमें बैठ करके आवाजें करता है जब तक कि वो पूरा पानी बह करके बाहर ना आ जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, और जो वाटर है उसको मस्ट बी केप्ट द मूव, कि उसको हटा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, एंड मेड टू डू थिंग्स, और कार्य करने चाहिए। व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, यदि ध्यान न दिया जाए, पानी को छोड़ दिया जाए, पानी इसकी नज़र में आ जाए, तो क्या है? प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग मीन्स क्या? कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शंस, तो उसको गुस्सा आता है या कोई और प्रतिक्रिया वो करता है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी otter in this pic. It is an otter. 2 days later, मिजबिल escaped from my bedroom. 2 दिन बाद मिजबिल बच निकला, मेरे बेडरूम से भाग निकला। As I entered it, जब मैंने बेडरूम में प्रवेश किया तो मिजबिल बाहर चला गया। And I turned to see his tail disappearing राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर, और जब मैं पलटा उसे देखने के लिए तो मैंने देखा उसकी पूंछ को डिसअपियर होते, वेनिश होते, गायब होते हुए, जो बैंड था, मोड़ था कॉरिडोर की तरफ, वहाँ पर। दैट लेड टू द बाथरूम, कॉरिडोर में क्या? बरामदा, जो बरामदा जाता था बाथरूम की तरफ, उसके मोड़ के ऊपर मैंने उसकी पूंछ को देखा। बाय द टाइम आई गोट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, और जिस समय तक मैं वहाँ पर पहुँचा तो वह बाथटब के आखिरी छोर पर था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज, और वह क्या कर रहा था? फम्बलिंग। फम्बलिंग मीन्स क्या? ट्राई टू डू समथिंग इन ए क्लमसी मैनर, कि वह अभद्र तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहा था, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा था। कहाँ पर? एट द क्रोमियम टैप्स, जो क्रोमियम की बनी हुई, क्रोमियम एक मेटल है जिसकी जो टूटियाँ है वो लगी हुई है, वो अपने पंजों से, पॉज मीन्स क्या? पंजे, अपने पंजे से उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, अमेज्ड, सरप्राइज्ड वे से, मैं आश्चर्यचकित रह गया। इन लेस देन ए मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, कि 1 मिनट से कम समय में ही उसने टर्न कर दिया था, ऑन कर दिया था, टैप को घुमा दिया था, कि उससे एक पतली सी पानी की धारा बह निकली थी। प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर मीन्स क्या? पतले से पानी, धीरे धीरे पानी बहने लगा था। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और 1 या 2 क्षण बाद पूरा पानी बहने लगा था। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, वह बड़ा सौभाग्यशाली था कि उसने टैप को सही डायरेक्शन में घुमाया था। ऑन लेटर ओकेजन्स, बात करें तो ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, कि कई बार वह उसको और अधिक स्क्रू कर देता था, घुमा देता था, टाइट कर देता था। चिटरिंग विद इरिटेशन, चिटरिंग क्या है? साउंड निकालता है, चरचर की आवाजें निकालता था, गुस्से से, इरिटेशन से, क्रोध से, डिसअपॉइंटमेंट, उदासी से। एट द टैप्स फेल्योर टू कोऑपरेट, जो वह असफल होता था टैप को खोलने में,
टैप से उसे कोऑपरेशन नहीं मिलता था, उस टाइम चिटरिंग करता था, आवाज़ें निकालता था गुस्से से और क्रोध से और उदासी से। वेरी सोन मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड, और शीघ्र ही मिज मेरे पीछे पीछे आने लगा था बिना किसी लीड के, बिना किसी रस्सी के। लीड मीन्स क्या, स्ट्रिंग, रस्सी के, रोप की। एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और वह मेरे पास आ जाता था जब भी मैं उसका नाम बोलता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना अधिकतर समय खेल में बिताता था। ही स्पेंड हार्स सफलिंग ए रबर बॉल, सफलिंग मीन्स क्या है, मिक्सिंग, ड्रैगिंग कह सकते हैं यहाँ पर, कि वह घंटों बिता देता था एक रबर की बॉल को मिक्स करने में, घुमाने में, ड्रैग करने में, राउंड द रूम, पूरे रूम में घुमा घुमा करके, लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर, कि जैसे एक 4 पैरों वाला फुटबॉल का, सॉकर मीन्स क्या, फुटबॉल, फुटबॉल का खिलाड़ी हो। यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, ड्रिबल मीन्स क्या, ड्रैगिंग, कि बॉल को घसीटने के लिए वह अपने चारों पैरों का यूज कर रहा है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वह इसे फेंक भी सकता था, विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, फ्लिक मीन्स क्या, ए क्विक लाइट मोमेंट, बहुत ही एक हल्की सी फटाफट जल्दी से अपनी नेक से, गर्दन से वह बॉल को फेंक भी देता था। टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, और बॉल को इतनी आश्चर्यजनक ऊंचाई पर, दूरी पर फेंकता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, परंतु एक ओटर का वास्तविक गेम जब होता है जब वह अपनी पीठ पर लेट जाता है और जगल्स मीन्स क्या, प्लेस, खेलता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के साथ, बिटवीन हिज पॉज, अपने पंजों के बीच में लेकर के छोटी छोटी चीज़ों से खेलता है। मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज, मार्बल्स, मार्बल्स क्या थे, स्मॉल ग्लास बॉल, जो शीशे की छोटी छोटी बॉल होती हैं, कंचे, वो उसका फेवरेट टॉयज था, मनपसंद खिलौना था। फॉर दिस पास टाइम, पास टाइम मीन्स क्या, हॉबी, पास टाइम के लिए, हॉबी के लिए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह हमेशा अपनी पीठ पर लेट जाता था। रोलिंग 2 or more ऑफ देम, डैम किसके लिए है, मार्बल्स के लिए, कि उनमें से 2 या 2 से अधिक मार्बल्स को वो रोल करता था, घुमाता था। अप एंड डाउन हिज वाइट, जो उसकी चौड़ाई है उसके इधर उधर मार्बल्स को घुमाता है। फ्लैट बेली विदाउट, जो उसकी फ्लैट, एकदम प्लेन जो बेली है, पेट है उसके ऊपर, विदाउट है ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, कि कभी भी एक बॉल को भी फर्श के ऊपर नहीं गिरने देता था। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। What experiment did Maxwell think कैम्सफरना would be suitable for? मैक्सवेल ने क्या सोचा था, किस एक्सपेरिमेंट के लिए कैम्सफरना सुटेबल था? मैक्सवेल थॉट कैम्सफरना would be suitable for the experiment of making a pet of an otter. To domesticate an otter, कैम्सफरना would be a suitable place. Why does he go to Basra? He go to Basra to collect his mail from the consulate generals. How long does he wait there and why? He has to wait for a week because his mail does not arrive. How does he get the otter? Does he like it? Pick out the words that tell you this. उसे ओटर कैसे प्राप्त था? Once he discussed one of his friends that he wanted to make an otter as a pet, and that friend sent him an otter through 2 herbs. Does he like it? Yes, he likes it. Pick out the words. Words कौन से हैं? Words जहाँ पर लाइनें आई थी कि जो ओटर है वो, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स लेखक ने जानी है। दूसरी बात आई थी कि जो ओटर्स होते हैं वो बहुत अटैचमेंट हो जाती है उनकी, जो भी उनके पालने वाले हैं उनसे, वहाँ से हम लाइनें यहाँ पर लिखेंगे। Why was the otter named Maxwell's otter? इस ओटर का नाम मैक्सवेल्स ओटर क्यों रखा गया? दिस ओटर्स race was unknown to the science and zoologist
Maxwell give this otter name, that's why it is known as Maxwell's otter. Next है tick the right answer in the beginning. The otter was, क्या था शुरुआत में ओटर? अलूफ एंड इंडिफरेंट था, फ्रेंडली था, होस्टाइल था. फ्रेंडली नहीं था, होस्टाइल नहीं था, तो क्या बचता है? अलूफ एंड इंडिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम? क्या हुआ जब मिजबिल को मैक्सवेल बाथरूम लेकर के गया? मैक्सवेल वेंट वाइल्ड with the joy of water. He ran the length of the bathtub under the water, rolling and diving, and he makes a lot of splash noise. What did it do 2 days after that? 2 दिन बाद क्या किया? After 2 days, it escaped from the room as the narrator entered the room, and it went into the bathroom and tried to open the chromium tap and open it. In the starting there was a trickle of water, and after that the water was flowing in full. Students, we have discussed till page number 106. I hope it is clear to you. We will discuss next pages in next video. Thank you.